So hello students, welcome to another online classes from Sigma School of Excellence. My name is Sheikh Aviz, I'm your field tutor. So as you know, in the last session we have learned about the types of motion and we have learned some parameters, some quantities to describe the motion. मोशन को समझने की बहुत सारी क्वांटिटीज हमने पढ़ी जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी. ओके, उसी जर्नी को आज कंटिन्यू करेंगे आज हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो यस. So, as you know, in the last session, I taught you what is speed and what is velocity. Okay. So now, with the let's learn more about the speed. Speed के बारे में हम और भी चीज जानने की कोशिश करते हैं आज. So, in the offline classes I taught you the different kind of speed like average speed क्या होती है. Okay. तो speed के अंदर let us learn about the different kind of speed. Okay. First speed called as the what? Average speed. So average speed क्या होती है? It's the average speed of whole journey. Suppose a person travels from A to B and there is a point C on it. Okay, suppose uh, from A to C the distance is S1 and the time taken is T1, and from C to B the distance is S2 and time taken is T2. Okay, so the average speed is what? It's the average speed of all the speed. Okay, suppose you can see over here of the in the from journey from A to C. अगर हम A से लेकर C तक की जर्नी की बात करें तो A से लेकर C तक की स्पीड कितनी होगी? It is what? Distance upon time, action upon T1. Okay. If I talk about the speed from C to B, it is what? S2 upon T2. So ऑब्जेक्ट को अगर A से B पर जाना है तो वो दो तरीके से जा सकता है. एक तो ये कि वो A से C तक S1 by T1 स्पीड से जाए और C से B तक S2 by T2 स्पीड से जाए, और दोनों अलग अलग डिफरेंट स्पीड से जाकर वो अल्टीमेटली उससे टाइम कितना लगेगा? It will take the total time. Total time is what? T1 plus T2. ओके, तो इस स्पीड से वो इस टोटल टाइम से वो दो अलग स्पीड से ट्रैवल कर कर ए से बी तक पहुंच सकता है. बट स्पीड क्या होती है? ये वो कांस्टेंट स्पीड होती है जिससे ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल करता है तो उतना ही टाइम लेगा जितना वो अलग अलग स्पीड से टाइम ले रहा है. ओके, सो एवरेज स्पीड क्या होगी इस पूरी सिचुएशन में? एवरेज स्पीड will be what? It is the total distance upon total time, meaning s total upon what? Time total. So यहाँ पर इस एग्जांपल में s total कितना होगा? S1 plus S2 and time total कितना होगा? It become what? T1 plus T2. This is the average speed. Okay, friends. This is the average. Now let us talk about the different another kind of speed called as the average speed. Average speed instantaneous speed क्या होती है ना? तो अगली स्पीड जो है वो बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड. So what is instantaneous speed? Okay, um, it is the speed which is indicated on automobile uh, in its odometer or speedometer. Okay, यानी कि स्पीड एट एनी स्टैंड, किसी भी स्टैंड किसी भी पल में जो स्पीड आ रही है, स्पीड एट एनी पर्टिकुलर, 1 second, at any instant, किसी भी इंस्टेंट में किसी भी पल में जो स्पीड आती है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, इसका सिंबल होता है VINST. Okay, and to calculate the instantaneous speed there is a formula, and this formula is what? YINST is equal to ds by dt. We will use the concept of differentiation to calculate the instantaneous speed. Okay,
सपोज आप बाइक में जा रहे हो तो आपका जो ऑडोमीटर है वो हर एक पल की अलग स्पीड दिखाता है ना, कभी 30 होता है, कभी 40 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है ना, तो हर पल क्या होता है, चेंज होते रहता है। ओके, सो वो हर एक इंस्टेंट पर जो उसकी स्पीड होती है उस बॉडी की, उस ऑटोमोबाइल की, उसी को हम क्या बोलते हैं, instantaneous speed. Okay, this is the formula for instantaneous. Now student, let us solve a question to make it understood how to calculate the average speed and instantaneous speed. Okay, suppose there is a question like what, एक object है वो it is traveling on a straight line and its distance, he is moving distance as per the relation like what, s is equal to 5t plus 6. Okay, this is the relation between the distance and the time. So an object is traveling on a straight line and it starts from a reference on x-axis, and the object starts its motion from origin. Okay, it is given to us. So, and the distance between the relationship between the distance travel and the time taken with reference to origin is given to us like this. Okay. Now, as per this, what you have to do is that you have to calculate the first question is what you have to find the. Let me change the question. It's 5t square plus 6. Okay. So we have to find the average speed between t is equal to थर्ड सेकंड, या ऐसे बोल सकते हैं आपको ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालनी है बिटवीन थर्ड सेकंड एंड सिक्स्थ सेकंड, तीसरे और छठे सेकंड के बीच में जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल करा फ्रॉम ओरिजिन, आपको थर्ड और सेकंड के बीच की एवरेज स्पीड निकालनी। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट यू हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड at exactly time is equal to 2 सेकंड। जब टाइम 2 सेकंड हो रहा था तो उस दूसरे सेकंड में उसकी उस पल की उस क्षण की स्पीड कितनी है निकालनी। इस सवाल में हमें रिलेशन दे रखा है और हमें एवरेज स्पीड भी निकालनी है और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकालनी है। ओके, let us try to solve this question. It's a very important question, students. Okay, so the formula for the average speed is the total distance from total time. Apart from that, there is one more formula, that is what, change in distance upon change in time. ओके, यानी कि अगर हमें थर्ड और सिक्स सेकंड के बीच में निकालना है तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, टाइम ये ओरिजिन है हमारा और ये टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 3 है। तो इस t3 पर उसने ओरिजिन से सपोज मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल करा, उसको शो कर रहा हूं मैं s3 से, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकंड्स। ओके, जब वो 6 सेकंड हो गए तो वो यहां पर आ गया है ना, ए पॉइंट पे से बी पॉइंट पर आ गया, तो उसका जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ओरिजिन से, इट बिकम व्हाट, उसको अज्यूम करते हैं हम s6। ओके, यानी 3 सेकंड्स में उसने s3 ट्रैवल करा और 6 सेकंड में उसने s6 ट्रैवल करा। तो आपको a से लेकर b तक की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अगर आपको a से लेकर b तक की एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपको a से लेकर b तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये डिस्टेंस अपॉन यहां से यहां तक का कितना टाइम डिफरेंस है वो निकालना पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखो स्टूडेंट्स, डेल s means what, we have to subtract the what, s3 from s6, so s6 minus s3 is basically the distance travel between 3 and 6 seconds। ओके, इसी के बीच हमें निकालनी है। और टाइम डिफरेंस कितना है, 6 से लेकर 3 के बीच में कितना टाइम गुजर चुका है स्टूडेंट्स, 6 minus 3 is what, it's 3 seconds। तो ये पूरा 3 सेकंड्स का टाइम स्पैन है
जिसके बीच की हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो टाइम डिफरेंस कितना आएगा, इट बिकम 6 - 3। ओके, तो अब द क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ टू फाइंड S6। तो अगर S6 हमें निकालना है तो ये फॉर्मूला ही तो हमें बताएगा, रिलेशन ही तो बताएगा कि 6 सेकंड में कितना ट्रैवल करा। तो हम क्या करेंगे, S6 निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां भी टाइम आ रहा है वहां टाइम के लिए 6 डाल देंगे। तो कितना होगा, इट बिकम 5 into 6 square my plus 6। When we solve it, it become what, 6 6 are 36, 36 into 5 is what, let me just calculate, 180 plus 6 186। ओके, so 6 सेकंड में उसने 186 यूनिट ट्रैवल करा। ओके, और S3 निकालने के लिए 3 सेकंड में कितना ट्रैवल करा, उसको निकालने के लिए हम जहां भी टाइम आ रहे हैं वहां ठीक है 3 डाल देंगे। तो कितना होगा, 5 into 3 square plus 6। It become what, yes friends, 3 square is 9, 9 5 is 45, 45 plus 6 is 51। So now we have find S6 and S3 with a relationship, and finally we just subtract it, 180 minus 51 upon what, time is 3. So 180 minus 51 will be what, 129, 129 upon 3. So this average speed between 3 and 6 second will be what, it is what, 43 unit। Okay, this is the average speed। I hope it is clear to you। In this way we can just find the average speed। Now अगर हमें instantaneous speed निकालनी है at 2 seconds, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we use the formula for the instantaneous speed as what, ds by dt। इस फॉर्मूले से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे। तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा s का टाइम के रिस्पेक्ट में। तो we have to differentiate d by dt of what, s। अब now s is what given to us, s हमें दे रखा है, आप देख सकते हैं 5t square plus 6, 5t square plus 6। तो इसमें हम s की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे तो कितना होगा, इट विल कम 5t square plus 6 हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, आता होगा। तो 5 को हम बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है तो t स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, इट बिकम 2t। ओके, एंड प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0। तो VINST कितना हो जाएगा, इट बिकम 10t। अब हमें किस टाइम पे निकालना है, 2 सेकंड्स पे निकालना है। तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है किस पल में, जब टाइम 2 सेकंड्स को हो रहा है, तो हम टाइम के लिए कितना इंसर्ट कर देंगे, 2 इंसर्ट कर देंगे। तो कितना आंसर आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज व्हाट, 20 यूनिट्स। This is how we find the instantaneous speed and average speed students. I hope it is clear to everyone over here. It's a numerical. Okay, तो हम इस तरीके से एवरेज स्पीड निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं। Okay, so after having learned about the speed, let us learn about the velocity। Now velocity is what, it's again rate of change of displacement। Okay, वहां स्पीड क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन ऐड हो जाएगी। तो स्पीड और वेलोसिटी में कितना फर्क है, इतना फर्क है कि आपको स्पीड में क्या होगा, स्केलर, स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फॉर्मूला वगैरह सब सेम ही रहेगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसमें डिस्टेंस आएगा। ओके, सो अब तक हमने 4 पैरामीटर्स पढ़ लिए, पाथ लेंथ या डिस्टेंस, देन वी हैव लर्न अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब पांचवा पैरामीटर मोशन को समझने का है वो एक्सेलरेशन। ओके, उसको समझने की कोशिश करते हैं आज। ठीक है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, बट इसको हम वापस से एक बार रिपीट करेंगे। ओके, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, सिंपल इसका स्मॉल ए होता है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन मींस व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity with respect to time। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, एक
एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली होता है क्या है, जब हम मोशन करते हैं, मोशन परफॉर्म करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को मोशन करता हुआ देखते हैं, तो स्पीड तो क्या होती है, वेलोसिटी हर पल चेंज होती रहती है, सर नो। सो अगर वेलोसिटी हर पल चेंज होती रहती है तो आपको कितना चेंज आया उस वेलोसिटी में, उसको अगर मेजर करना है क्वांटिटेटिवली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेलरेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज यहाँ हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ए है, इस ए पॉइंट पर हमने देखा एक ऑब्जेक्ट है, चलना स्टार्ट करा, हमने जाते हुए उसको देखा, तो यहाँ टाइम 0 हो रहा था, 0 टाइम पर ए पर था, और हमने देखा उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम बढ़ा तो बी पॉइंट पर आ गया और टाइम हो चुका है इस पर 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि इसकी स्पीड कितनी हो गई, 60 मीटर पर सेकेंड हो गई। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ओके, मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए कि यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आया, हाँ आया, कितना चेंज आया, जस्ट कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज आया, 10 से 60 हो गई ना, 10 से 60 हो गई, तो कितना चेंज आया वेलोसिटी के अंदर, आप देख सकते हैं, इट इज व्हाट, 60 माइनस 10, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, 50 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। ओके, इतना चेंज आया वेलोसिटी के अंदर। अब ये जो चेंज आया कितने टाइम में आया, देखो टाइम कितना, टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 0 से 5 सेकंड के बीच में 5 सेकंड का डिफरेंस आया है ना। तो हम कह सकते हैं, अगर हमें एक्सेलरेशन को फील करना है तो हम बोल सकते हैं कि 5 सेकंड के अंदर कितना चेंज आया, 50 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो अगर 5 सेकंड के अंदर 50 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, तो 1 सेकंड में कितना चेंज आया होगा, तो 1 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 10। ओके, तो हम ऊपर बोल सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर हाउ मच चेंज इन वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड का चेंज आया। इट इज द चेंज इन velocity in 1 second। ओके, यानी कि जब यहां पर ऑब्जेक्ट आया, सपोज ये सी पॉइंट है और टाइम हो गया था कितना, 1 सेकेंड, तो कितना चेंज आया 10 का, तो पहले स्पीड 10 थी, तो अब कितनी स्पीड हो जाएगी, यहाँ पर 10 तो थी सी पहले से, 10 में 10 और बढ़ा दीजिए, तो टाइम आंसर कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। तो टाइम जब और बढ़ा, टाइम हो गया 2 सेकंड, 1 सेकंड स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कह रहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द एक्सेलरेशन। ओके, मैंने एग्जाम्पल देके बताया आपको कि 1 सेकंड में कितना चेंज आया, उसी को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के बारे में ये जानने के बाद, एक्सेलरेशन दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप एक्सेलरेशन, वन इज द एवरेज एक्सेलरेशन, ओके, अदर इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज इज व्हाट, एक पूरी पर्टिकुलर जर्नी का एक्सेलरेशन, एवरेज जो होता है उसे एवरेज बोलेंगे, और किसी पल का अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो उसे क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, देखो फॉर्मूला अभी हमने एग्जांपल लिया कि सपोज ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करा, सपोज यहाँ टाइम हो रहा था, टाइम यहाँ पर हो रहा था, इनिशियल टाइम टी आई था। ओके, और इस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी थी, सपोज थी यू स्पीड। ओके, ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर आया और टाइम कितना हो गया, सपोज टाइम हो गया टी एफ, एफ फॉर फाइनल टाइम। ओके, यहाँ स्पीड कितनी होगी इसकी, सपोज वी हो गई है ना। यू बेसिकली यूज आता है जब हम इनिशियल स्पीड को डिनोट करते हैं तो यू यूज में लेते हैं, और फाइनल स्पीड को डिनोट करते हैं तो वी लेते हैं ना। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा एक्सेलरेशन का, वो बनेगा a is equal to change in velocity, change in velocity upon टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उसको चेंज होने में। तो देख सकते हो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ v माइनस यू, तो v माइनस यू, और जो टाइम डिफरेंस हुआ वो कितना हो जाएगा
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, इसको हम सिंपली टीवी बोल सकते हैं। तो v माइनस यू अपॉन टी इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, और ये हमें समझाता है कितना चेंज आया हर सेकेंड। ओके, सो इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट कितनी होगी? देखो वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम की कितनी होती है? सेकेंड। तो यूनिट बिकम व्हाट? इट बिकम व्हाट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। ओके, because it's the change in velocity and velocity is a vector quantity, so it's a vector quantity, it's a vector quantity, and direction क्या होगा? along the increasing direction of velocity। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी वही क्या होगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ये आपको बात याद रखनी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाट? एक फॉर्मूला तो आपने लर्न करा है कि इट इज व्हाट? v माइनस यू अपॉन, सॉरी v माइनस यू मैंने गलत किया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, और ऐसा भी बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। बट अगर आपको कोई किसी पल का एक्सेलरेशन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? INST निकालना है तो हो जाएगा इट इज द dv by dt, rate of change of velocity with respect to time. This is the formula for instantaneous acceleration. Okay, so these two formula I have to learn by you. Okay, moving ahead students, acceleration के बाद अब जरा मैं इसको आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो आपने देखा कि जब टाइम 3 सेकंड हो रहा था तो आपकी वॉच में, तो आपने देखा ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहा था और इसकी स्पीड थी 50 यूनिट्स। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि इसकी स्पीड चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, तो अगर आपसे मैं बोलता हूँ कि इस पूरी मोशन में जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है? अगर 10 हो रहा है। ओके, इस 10 के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो 10 इज व्हाट? इट्स द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितना चेंज आया, वही तो एक्सेलरेशन है। तो अगर टाइम जब 3 सेकंड्स था तब वेलोसिटी कितनी थी? 50 मीटर 50 यूनिट थी। तो अगर हम टाइम में 1 सेकंड बढ़ा दें यानी कि 3 से 4 सेकंड हो जाएगा, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, तो 1 सेकंड में कितना चेंज आया, कितना इंक्रीमेंट हुआ? तो देखो यहाँ पर 10 का इंक्रीमेंट हुआ, तो हम क्या करेंगे? जो प्रीवियस स्पीड में क्या बढ़ा देंगे? 10 का इंक्रीमेंट कर देंगे, तो इट बिकम व्हाट? 60। ओके, अगेन टाइम 5 सेकंड में आपको स्पीड निकालनी है तो क्या होगा? अगेन हर सेकंड में 10 की स्पीड बढ़ रही है, ये तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है। कितना 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है? तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के करेंगे, जो 60 स्पीड है उसमें क्या करेंगे हम? 10 का इंक्रीमेंट कर देंगे। कितना हो जाएगी स्पीड? 70 हो जाएगी। यानी कि बेसिकली 1 सेकंड में कितना चेंज आया उसी को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स ओवर हियर? यस और नो? दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। Okay, these are the 5 parameters to study the motion. Okay, so students, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। Okay, we have learned all the parameters of the motion, and the next classes we learn about the different types of motion, motion कितने types के होते हैं। Okay, then we learn the graphical representation of motion. Okay, then we will learn about the very important motion called as the uniformly accelerated motion. Okay, ये सब हमें आगे पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर। Okay, this is the foundation of mechanics. Okay, mechanics means the study of motion, or kinematics is the study of motion without considering the cause. Cause को नजरअंदाज करते हुए मोशन की स्टडी करने का नाम ही what है? Kinematics, mechanics, sorry, kinematics. Clear? So student, that's it from my side. Okay, have a nice day, take care, bye bye.